Hello friends, today the Nirmala Sitharaman ji has presented the budgets and I am here to give you the detailed analysis on the budget so far as the direct tax proposals and the indirect tax proposals. I will not touch upon what is being given to agriculture, what is being given to X sector, Y sector. That is not relevant to me, or at least that's not the that's what people are expecting from my end. I will try to keep this lecture in English as well as in the हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं साइमल्टेनियसली या एज पर दी आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं आपको बताता रहूँगा. So it is being said that since the budget has been presented since last 2-3-4 hours, like जिससे भी मेरी बात हो रही है, so everybody is saying that there is ये क्या बजट था या मजाक था. So my humble reply to them is like there are numerous changes. Like this is the really a historical budget and there are numerous changes. However, the changes are very small in nature, procedural in nature, and that is not like the headline changes are not there. There is no change in the tax rates. So and that is a good step, that there is a no change in the tax rates. But apart from that, I would start with the what are the changes. So there are 79 sections in which there are changes, right? So 79 sections which are being amended by this budget. So when I say the sections, that doesn't mean the subsections. So in total, there could be numerous 79 into 5, 6, 7. Because like let's say if I talk about there is amendment in section 139. So there could be change in 139 subsection 1, subsection 2, subsection 3, subsection 4, subsection 5. So there could be changes in that. But it is like precisely there is a change in section 139. So इस तरीके के बहुत से चेंजेस जो है वो बजट के अंदर आए हुए हैं. So there are numerous changes, but like I will start upon with the first की जिससे at least senior citizen के मुंह पे smile आ जाए. So first of all, the change is there for the so far as the section senior citizens के लिए जो है वो change है. That's a welcome move. जो भी 75 years and above के लोग हैं तो उसके लिए ये चेंज है. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल. अभी ये सुन के बहुत से लोग खुश हो जाएंगे. सो अच्छा है, खुश होना ही चाहिए. बट देन देर आर सर्टन कंडीशंस दैट इज अटैच. लाइक सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द चेंज? अ सीनियर सिटीजन हु इज हैविंग जस्ट एन इनकम फ्रॉम द पेंशन, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न. एंड व्हाट इज बीइंग सेड? Moreover, he can have the interest income from the same bank in which he is receiving the pension. So that is the change, right? So he can have the income from pension as well as he can have income from interest. But mind well, interest income should be there from the bank in which he is getting the pension. So a new section 194P has been inserted into the Finance Act. Now जब मैं बजट की स्पीच सुन रहा था, so Nirmala Sitharaman ji said that a senior citizen aged above 75 years is not required to file the return. So plenty of people, like I got a call after that also कि भाई हाँ 75 साल के बाद अभी कुछ इनकम टैक्स नहीं. तो ऐसा नहीं है 75 साल के बाद कभी इनकम टैक्स नहीं भरना, ऐसा कभी इस देश में नहीं आने वाला है. सो नेवर एक्सपेक्ट दैट थिंग. सो बट डिस्पाइट दैट, व्हेन इट वाज इवन दिस वाज अनाउंस्ड दैट, सो आई गॉट दैट एटलीस्ट देयर कुड बी एन exemption from the filing of the return so far as the person's age above 75 years are concerned. So 75 साल के ऊपर के लोगों के लिए रिटर्न फाइलिंग में से कंसेशन आ सकता है. जो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा है. बट देन आई थॉट ऑफ कि यार ये पॉसिबल नहीं है. मतलब इट इज लाइक दिस इज द थॉट, लाइक जो 60 साल के आदमी को 20 साल की गर्लफ्रेंड होना, ये ऐसा थॉट जो है वो मुझे लगा. सो गोइंग बाय दैट, this was the thing. But then later on I read the fine print of the finance bill. Section 194P has been inserted और पेंशनर्स को उनकी नौकरी के दिन जो है वो याद करवा दिए. जो एज यू आर अवेयर दैट पेंशनर्स आर नॉट दी वन
pensioners are the one who is not required to file the who is required to file the return, but they are not supposed to give any details to their employer, which they used to give when they were in the job. So accordingly 194P सेक्शन भी वही बोलता है कि जहां भी आपको पेंशन आ रहा है उस बैंक के अंदर आपको जाके जितना भी आपका एटीसी का इन्वेस्टमेंट का डिटेल देना है, एटीडी का डिटेल देना है, वो सब आपको वहां पे जाके दे देना है। और वहां पे जाके आप देंगे डिटेल्स, तो जो भी आपका टोटल इनकम बन रहा है उसके ऊपर जो भी आपको डिडक्शन क्लेम करना है वो डिडक्शन क्लेम करना है, और उसके बाद जो भी टैक्स पे करना है वो आपका बैंक जो है वो आपका टैक्स जो है वो काट लेगा। So that is the first change for the senior citizens aged above 75 years. I explained the condition. Section 194P has been inserted. So that is the first amendment. Second amendment which is there, which is again very important aspect for every one of us. So in that, what is the change? So the change is like this कि there is a अब तक क्या था, लेट्स से अप टू AY 18-19 क्या था। सो अप टू AY 18-19 द सिनारियो, अप टू AY 17-18 द सिनारियो वाज कि आप AY 17-18 का रिटर्न AY 17-18 में भी भर सकते हैं और AY 17-18 का रिटर्न आप AY 18-19 में भी भर सकते हैं। सो एज टू से जो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 है, द ईयर विच हैड एंडेड ऑन 31 मार्च 2017, उसका रिटर्न आप कब तक भर सकते थे? तो आप उसका रिटर्न 31 मार्च 2019 तक आप भर सकते थे। ये पुराना लॉ था। Then in 2018 finance bill, when the Mr. Jaitley was the finance minister, at that point of time they brought an amendment कि एक असेसमेंट मतलब कब तक रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। सो यू कैन फाइल द रिटर्न अप टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। सो फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 18-19 व्हाट केम इनटू द पिक्चर कि असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 17-18, दैट द ईयर विच हैड एंडेड ऑन 31 मार्च 2018 का जो ईयर है, तो उसका रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हैं? तो उसका रिटर्न आप 31 मार्च 2019 तक ही आप फाइल कर सकते हैं। सो दिस वाज द चेंज कि पहले आप एक असेसमेंट मतलब जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उससे 2 साल तक आप फाइल कर सकते थे। देन फ्रॉम दी फाइनेंशियल ईयर 17-18 फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उससे 1 साल तक ही आप रिटर्न फाइल कर सकते थे। सो दैट वाज द सेकंड चेंज। अभी AY 19-20 वाज द एक्सेप्शनल ईयर क्योंकि कोरोना था। सो कोरोना के कारण गवर्नमेंट ने जो AY 19-20 की जो रिटर्न जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2019 को, तो उसका रिटर्न फाइल करने की तारीख जो है वो 30 नवंबर 2020 तक जो है वो उन्होंने लंबा एक्सटेंड की थी। बट दैट वाज एन एक्सेप्शनल केस। सो रिलेवेंट आप समझ गए कि भाई जो ईयर खत्म होता है उससे 1 साल तक अपन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट फ्रॉम दी असेसमेंट ईयर 22-23 मतलब क्या, जो अब जो ईयर 31 मार्च 2022 को खत्म होगा उसकी बात करें, 31/3/2021 की बात नहीं करें। सो 31/3/22 को जो खत्म होगा उसका रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं? तो कि भाई रिटर्न जो रेगुलर कोर्स ऑफ रिटर्न जो है वो कब तक फाइल कर सकते हो? तो लेट से जुलाई के महीने के अंदर या डिपेंडिंग अपॉन सितंबर या अक्टूबर, वॉट एवर एज पर दी, जब क्या आपका रिटर्न स्क्रूटिनी में आता है, आपका रिटर्न ऑडिट में आता है, आपका रिटर्न ऑडिट में नहीं आता है, तो उसके हिसाब से जो है वो आपको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जो है वो एप्लीकेबल होता है। सो दिस वाज द रेगुलर केस कि जहां पे आप रेगुलर रिटर्न 139(1) के अंदर, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर आप रेगुलर कोर्स में आप रिटर्न फाइल करते हैं। उसके बाद है सेक्शन 139(4) जो है, दैट इज कॉल्ड दी बिलेटेड रिटर्न। तो आपने अब तक जो भी रिटर्न फाइल की है तो 139(1) के बाद मतलब लेट्स से 31 जुलाई के बाद रिटर्न आप फाइल करते हैं तो वो कौन सा रिटर्न गिना जाता है? तो दैट इज कॉल्ड एज अ बिलेटेड रिटर्न एंड फॉर विच देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 1000, 5000 एंड 10,000 रुपीज एज द केस मे बी। सो दैट वाज देयर इन दी दैट इज द एग्जिस्टिंग प्रोविजन। अभी उसके अंदर गवर्नमेंट ने एक जबरदस्त चेंज कर दिया। अब तक ऐसा था कि 31 मार्च 2020 का रिटर्न आप 31 मार्च 2021 तक भर सकते हैं। 31 मार्च 2022 से क्या होगा कि आप उसका रिटर्न 31/12/2022 तक ही भर सकेंगे। मतलब 31 दिसंबर 2022 के बाद आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 दैट इज असेसमेंट ईयर 22-23 का रिटर्न आप फाइल
नहीं कर सकते हैं. सो अ वेरी दिस इज द मेजर चेंज इन वन सेक्शन 139(4). सो पेनल्टी देके भी आप जो है वो दिसंबर के बाद आप रिटर्न जो है वो फाइल नहीं कर सकते हैं. सो 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इन फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपको गिन के चलना है. सेक्शन के अंदर जो वर्ड दिया गया है वो 3 months बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर. सो इट कुड बी लाइक 3 months बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर और 9 months आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. बोथ इज हैविंग द सेम मीनिंग. सो आप जो कैजुअल अप्रोच था लोगों का रिटर्न फाइलिंग के लिए, सो नाउ द गवर्नमेंट वांट्स टू हैव अ टाइटर फिस्कल नॉर्म्स कि भाई हाँ, अगर आपको रिटर्न फाइल करना है तो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल इट बिफोर, वेल इन टाइम, वेल इन एडवांस आपको वो गिन कर वो जो है वो करना है. सो दैट इज देयर. अगेन ओवर एंड अबोव दैट व्हाट इज द थर्ड चेंज कि रिवाइज रिटर्न की बात करते हैं. रिवाइज रिटर्न जो है वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5. तो पहले अब तक तो क्या था कि व्हेन अ रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड, सो रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड एट एनी टाइम. Return can be revised at any time on or before the completion of the assessment or completion of the assessment year, whichever is earlier. So let us say मैं आपको थोड़ी डेट्स के साथ वो एग्जांपल आपको समझाता हूँ. सो 139(5) में क्या था कि लेट्स से आप फाइनेंशियल ईयर 1920 का रिटर्न हमने भरा है. लेट्स से ऑन 30th of November 2021 को अपन ने रिटर्न 30th of November 2020 को हमने रिटर्न फाइल कर दिया. सो वो रिटर्न कब तक रिवाइज कर सकते हैं? तो एट एनी टाइम ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट और ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट ईयर, विच एवर इज अर्लियर. सो लेट्स से असेसमेंट होने में बहुत टाइम लग रहा है, 6 महीने लग जाते हैं. सो आपका असेसमेंट ईयर कब खत्म होगा? सो वो होगा 31st March 2021. सो FY 1920 का आप रिटर्न जो है वो 31st March 2021 तक जो है वो आप रिवाइज कर सकते हैं. Now, what is the change here? Section is being drafted in some vague manner. So far as the amendment is drafted in some vague manner, and that could create a good amount of confusion in the minds of the people. So, what is the change? What is the confusion creating thing is there? The important aspect is वहां पे जो 139(5) ओरिजिनल जो सेक्शन है, तो उसके अंदर क्या लिखा है कि एट एनी टाइम और कंप्लीशन और एट एनी टाइम बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट और एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर. अभी उसको क्या बोला यहां पे कि एट एनी टाइम जो है उसको विद इन 3 months. अभी विद इन 3 months का मतलब क्या करना, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन. हाउएवर अब तक का जो भी मेरा डिस्कशन हुआ उसमें लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि भाई अब जो असेसमेंट ईयर का जो भी असेसमेंट ईयर का अपन रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं, दैट कुड बी रिवाइज लेट्स से 31st March 2022 का रिटर्न जो है वो अपन 31st December 2022 तक अपन जो है वो उसको जो है वो रिवाइज कर पाएंगे. हाउएवर उसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द ओरिजिनल रिटर्न जो है वो आप कर सकते हैं. However, there could be different opinion, but then I would go with the majority opinion जो है वो कि भाई 31st December 2022 तक जो FY 21-22 का रिटर्न जो है वो हम रिवाइज कर पाएंगे. सो वी आर गोइंग बाय दैट व्यू और वो अपन को मान के चलना है. However, a clarification is required from the income tax department or in the manner. So that is the second change. That is the third change, I would say. First change, as I mentioned, for the senior citizens aged above 75 years. Second change is for the one who is like for the belated return. Third one is for the revised return. Fourth change, that is a very important change, and the fourth change deals with the procedural aspect. The procedural aspect is what, as every one of us is aware of, कि income tax returns of the 6 earlier assessment years could be reopened by the income tax department. There are certain conditions, but अपन like if we talk about मोटा अगर अपन बोलते हैं, so it could be reopened up to 6 assessment years. So what is the change?
आप ऐसे ही चेन जो भी मैं हेडलाइंस देख रहा हूँ CNBC पे या वगैरह पे, तो उसमें सभी में ऐसा ही आ रहा है कि ना 3 साल तक ही ओपन हो सकता है. बट दिस इज अ वेरी स्मार्ट मूव दैट इज बीइंग डन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. बट वी विल गो रीड दी सेक्शन, जो मेरे पास बजट का फाइनेंस बिल का जो कॉपी आ गया है, आई विल रीड दैट कॉपी फर्स्ट. फिर उसके बाद अपन जो है वो आपको भी पता चल जाएगा कि क्या ट्रिक से इन लोगों ने मतलब बड़े अच्छे से उन्होंने जो है वो ये सेक्शन को चेंज किया. इट इज प्रपोज टू सब्स्टिट्यूट दैट द सेड सेक्शन सो एज टू प्रोवाइड दैट बिफोर मेकिंग द असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्पुटेशन अंडर सेक्शन 147 एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 148A, the assessing officer shall serve the assessee a notice along with the copy of order passed under clause D of section 148A, requiring him to furnish within such a period as may be prescribed, as may be specified in such a notice, a return of his income or the income of any other person in respect to which he is assessable under the Act during the previous year corresponding to the relevant assessment year in the prescribed form and verified in the prescribed manner, and setting forth such other particular as may be prescribed, and the provisions of this section shall so far may be applied accordingly as if such return was a return required to be filed under section 139, right? So this was provided that no notice under said section suggests that the income chargeable to tax has escaped assessment in the case of the issue such notice has been obtained by the assessing officer. So this is the existing section is this. So उसके अंदर क्या है कि मान लो कि आप तो you are believing that कि income tax department doesn't know anything. आप ऐसा मान रहे थे और आप घर पे शांति से आराम से सो रहे थे, एंड वन फाइन डे मॉर्निंग यू रिसीव अ नोटिस फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अब तक क्या था कि नोटिस 6 साल तक निकाल सकते हैं असेसिंग ऑफिसर जो है, इफ ही हैज समथिंग ऑन रिकॉर्ड कि भाई इनका कुछ टैक्स भरना निकलता था और इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया, उसकी वजह से हम उनका टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं कर पाए, ऐसा असेसिंग ऑफिसर को लगता है, तो ही कैन इश्यू द नोटिस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन. दिस इज द एग्जिस्टिंग लॉ. हाउएवर देयर इज अ इंपॉर्टेंट चेंज. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट चेंज? The proposed explanation 1 to the said section provides that the purpose of the said section and the section 148A, that information which suggests that the income chargeable to tax has escaped assessment means any information flagged in the case of assessee for the relevant assessment year in the accordance with the risk management strategy formulated by board from time to time, right? Or any final objection raised by C and AG to the effect that the assessment in the case of the assessee for the relevant assessment year has provides that where one search is where search or seizure is there or survey is there, or assessing officer with the prior approval of the principal CIT can take or has some information which is there on the record. So now what does this section says? So in that case where कौन से केस के अंदर, तो जिस केस के अंदर ये सब इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब कोई भी केस जो है वो 3 साल तक वो रीओपन कर सकते हैं. सो लेट्स से असेसमेंट ईयर 22-23 से ये अमेंडमेंट जो है वो एप्लीकेबल होगा. सो असेसमेंट ईयर 22-23 का रिटर्न जो है वो कब तक वो लोग रीओपन कर सकते हैं? सो 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर. सो 3 years व्हेन बिगिंस, सो असेसमेंट ईयर 22-23 का रिटर्न जो है वो असेसमेंट ईयर 25-26 तक जो है वो रीओपन कर सकते हैं. सो अर्लियर दिस असेसमेंट कुड हैव बीन रीओपन्ड अप टू 6 years. सो वो 31 मार्च 2029 तक ओपन कर सकते थे, लेकिन अभी जो है वो 31 मार्च 2026 तक ही ओपन कर सकते हैं. However, they can still reopen the assessment, and now not up to 6 assessment years. Now they can reopen up to 10 assessment years. Yes. However, they can reopen up to 10 assessment years subject to that the income escaped is rupees 50 lakh or more. Okay, so there are certain other conditions also there, but the major condition is
50 लाख से ऊपर का इनकम जो है वो एस्केप कर गया है असेसमेंट, दैट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी देयर ऑन द रिकॉर्ड एज वेल एज फॉर द सेम एंड अप्रूवल फ्रॉम द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स इज रिक्वायर्ड। सो सब्जेक्ट टू ऑल दिस कंडीशंस रीअसेसमेंट कैन बी देयर। नाउ लेट्स से प्रिंसिपल सीआईडी का अप्रूवल लेके वो आपको 10 साल तक के जो है वो आपके रिटर्न्स जो है वो रीओपन कर सकते हैं। So indirectly they have reduced the time limit for reopening the assessment, but they have extended it up to the 10 year for the cases where the income escaped is more than 50 lakhs of rupees with the approval of the principal CID. So this is a very smart move that they have, that the income tax department has done. However अभी आपको इसके ऊपर से जब ये मैंने सुना तब मुझे एकदम बड़ा अच्छा लगा कि तो मतलब ये जो बीच के जो असेसमेंट ईयर रहेंगे दैट वुड बी अ सैंडविच असेसमेंट ईयर्स एंड पर्टिकुलरली असेसमेंट ईयर 16-17 एंड 17-18, 15-16, 16-17, 17-18, क्योंकि उसके वो 6 साल वाले में नहीं जाएगा और 3 साल वाले में जाएगा तो 3 साल जो है वो ऑलरेडी उसके खत्म हो चुके हैं। सो 15-16, 16-17 एंड 17-18 कुड नॉट बी रीओपन नाउ, बट देन द अमेंडमेंट इज नॉट द रेट्रोस्पेक्टिव वन, माइंड वेल। ये जो अमेंडमेंट है दैट इज फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 22-23। सो फार एज दी जो उसके आगे वाले असेसमेंट ईयर है तो उसके असेसमेंट तो है वो 6 साल तक रीओपन हो सकते हैं। सो लेट्स से असेसमेंट ईयर 19-20 है तो उसका असेसमेंट तो 31 मार्च 2026 तक रीओपन हो सकता है। असेसमेंट ईयर 16-17 है तो उसका तो 31/3/2023 तक जो है वो असेसमेंट जो है वो रीओपन हो सकता है। सो माइंड वेल दैट थिंग एंड उसको जो है वो ध्यान में रख के उसको भी जो है वो ध्यान में रखना है। और द अमेंडमेंट जो ये आया है वो उसके लिए ये जो है वो अमेंडमेंट आया है। थैंक यू।